नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हुरम खान। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सलाम डेक्कन में कर्नाटका के मैसूर में तालिबा गैंगरेप मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुलजिम की तलाशी जारी है। पुलिस अफसर प्रवीण सूद के मुताबिक सभी मुलजिम छोटे मोटे काम करने वाले हैं, लेकिन वो अदालत से गुजारिश करेंगे कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाते हुए जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। याद रहे कि मैसूर के चामुंडी हिल्स इलाके में तालिबा अपने दोस्त के साथ बाइक से जा रही थी। इसी दरमियान कुछ बदमाशों ने बाइक रोक ली और दोनों से रुपए की मांग करने लगे। रकम न देने पर मुतासिरा के दोस्त को जख्मी कर दिया गया और तालिबा को अपने हवस का शिकार बनाया गया। पुलिस कमिश्नर डी चंद्रगुप्ता ने मौका वारदात का दौरा कर स्पेशल टीम बनाकर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस बसवराज हुकूमत को सीधे तौर पर जिम्मेदार बता रही है। We have been able to arrest 5 out of 6 accused. They are all resident of Tirupur in Tamil Nadu. One of them possibly is juvenile. It's subject to confirmation and verification. He could be about 7. So he will be treated as juvenile. But as all of us know, in case of heinous crimes after Nirbhaya, anyone above 16 years can also be tried in a normal court. So we will have to see his exact age. So 5 out of 6 people have been arrested. The efforts are on to arrest the 6 people and the case has been detected. We will also request judiciary to expedite and take it as a special case for fast trial. And our objective would be, as we had done earlier in Manipal case and Agarbavi case, to get the conviction as early as possible. That is the long-term solution to these problems which keep occurring now and then. So I want to congratulate my team, and we have also announced good reward for the team. गिरफ्तार मुलजिमीन के बारे में डीजी प्रवीण, They are one of them is a carpenter, one of them is a wireman, 2 of them are drivers doing menial jobs in Tirupur. And now and then they were coming to Mysore, sometime bringing vegetables, fruits, etc. or any load. So with the drivers, friends would also come while going, because they are coming to a big city, a peaceful city, a beautiful city like Mysore. They would have tendency to have some party and go back. But this time, before going back, they did this very serious offence for which they have now been arrested. I would say every case of such nature is extremely challenging when the accused are not known. It becomes all the more challenging when we are not able to elicit any information from the victim. मैसूर गैंग रेप की वजह से मुश्किलों में घिरी बसवराज हुकूमत के लिए उनके वुज़रा और मुश्किलों में डालते हुए नजर आ रहे हैं। रियासत के वजीर दाखिला ने के इतनी देर तक मुतासरा के बाहर होने पर सवाल पर ऑपोजिशन ने उल्टा सवाल खड़ा किया है, जबकि विमेन एक्टिविस्ट का कहना है कि भारत है अफगानिस्तान नहीं जहां खवातीन के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जाए। वहीं ऑपोजिशन वजीर दाखिला के बयान की हिमायत करने वाले दूसरे वजीर पर भी सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुतासरा के कमी तलाश रही है। This shows the culture and the attitude of the BJP ministers and the leaders of the BJP. Anyway, we have sent a team. Already my party team is already on the job. We wanted to know the truth of it. Whether the girl has gone or individual or not, it is the question of giving protection to every citizen of this state. That she should be free, and this shows that the minister are encouraging this type of rape, and with the name of in this incident the minister calling that the congressman is raping him itself, Home Minister telling itself shows their attitude. It's most unfortunate this kind of statement made by the ministers, because saying that these women should not go after 7 o'clock, it is definitely not acceptable. Now the duty of the government to protect the lives of the people
and she gives security to women. ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको करना चाहिए. लेकिन इस तरह का जो स्टेटमेंट जो कर रहे हैं, इट्स मोस्ट not defend, because this kind of what else we can expect from this government? What else? Today we had one articles come in our papers that every day some incidents are happening against women whole of Karnataka. So the total law and order is not up to the mark. So intelligence failure is there. Such kind of incident never happened in Karnataka. जिस तरह का जो gang rape हुआ, जो recording हुआ, most inhuman. And now the ministers, they should deal with the iron hand and they should not make such kind of irresponsible statements. जो इंसिडेंट हुआ है कर्नाटक में वो निर्भया प्रकरण जैसा है और इससे है ना महिलाओं के अंदर चिंता बढ़ी है और हम इसका कड़ी विरोध करते हैं, खंडन करते हैं. मगर इससे भी ज्यादा हम इनका खंडन करना पड़ेगा जो पूरा इस समाज का लोगों का रक्षा करना गृह मंत्री है और बीजेपी का जो मिनिस्टर्स है उनका जो बयान आ गया इस इंसिडेंट के बाद वो बार्बरिक है, वो क्रूएलिटी है कि मैं ये कहना चाहती हूँ अफगानिस्तान में जैसा तालिबान कहते हैं कि महिला बाहर नहीं आना, महिला नहीं फिरना, महिला उद्योग नहीं करना, महिला घर के अंदर रहना, कि बीजेपी का ये जो मिनिस्टर्स है इनका बयान देखे तो मुझे ऐसा लगता बीजेपी का एजेंडा भी तालिबान जैसा है. ये तालिबानी स्टेटमेंट है इनका. हम इसका कड़ी विरोध करते हैं. मैं कहना चाहती हूँ महिला इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, मगर महिला के बिना समाज चलता नहीं. इस मामले में तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी जुड़ गए हैं. शाहिद, सबसे पहले आपसे मामले की अपडेट जानना चाहेंगे. क्या तफसीलात है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में अब तक? देखिए इरम, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को आखिरकार मिली है. तकरीबन 5 लोगों को जो है इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है. आज परवीन सूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो है ये 6 लोग थे जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक और शख्स की तलाश जारी है. ये गिरफ्तारी तमिलनाडु के त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हुई है. बताया जा रहा है कि ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और मैसूर इनका आना जाना था और उन्होंने तमिलनाडु से चामराजपेट तक का सफर किया था और उसकी जो बस की टिकट थी वो मौके वारदात पर मिली और उसी बिना पे जो है ट्रैक किया गया और साथ ही साथ जो मोबाइल टावर है उसके जरिए भी जो है ट्रैकिंग हुई है, जिसके नतीजे में जो है आज उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस को कहीं ना कहीं 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया बताया जा रहा है, जिसमें से एक माइनर भी है, यानी कि 16 या 17 साल का एक लड़का भी है. लेकिन उसे उन्होंने कहा कि एग्जामिन करना बाकी है, लेकिन हमें अंदाजा है कि एक माइनर है. बताया जा रहा है कि ये जो अभी पुलिस को कामयाबी मिली है, अब इसके बाद जो है ये लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि और कोई इसमें इन्वॉल्व है क्या, किस तरह से हुआ था. और उसके बाद में जो है ये अब कस्टडी में लेने के बाद जो है अब कोर्ट को पेश करेंगे और कोर्ट से मुतालबा करेंगे कि वो पुलिस कस्टडी में उसे दें ताकि और मजीद इस मामले की छानबीन हो सके और इसके ताल्लुक से और भी जानकारी हासिल करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर की जा सके और ताकि एक पैगाम जाए लोगों में, क्योंकि नाराजगी देखी जा रही थी कर्नाटक भर में, क्योंकि जो गिरफ्तारी होनी थी वो काफी ताखीर हुई है. काफी लंबे वक्त से जो है 3 दिनों के बाद में जो है ये गिरफ्तारी सामने आई है. उसके बाद जो है 3 दिनों तक लगातार लोगों का जो गुस्सा है वो सामने आ रहा था. लोगों का मुतालबा था कि मैसूर जैसे शहर में अगर इस तरह का वाकया हो सकता है एक टूरिस्ट प्लेस में, तो आने वाले दिनों में किस तरह से हालात होंगे कर्नाटक के, उस बात को लेकर काफी लोगों में एक डर था, एक गुस्सा था और कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस बात का एहसास था और हुकूमत इस पर काफी संजीदगी से काम कर रही थी. इसमें एडीजीपी को भी नियुक्त कर दिया गया था और साथ ही साथ जो यहाँ के डीजीपी हैं परवीन सूद ने भी इस पर काफी स्ट्रांगली नोटिस लिया और उन्होंने एक टीम बनाई जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है और आखिरकार जो है उन्हें 5 लोगों को गिरफ्तार करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. अब देखना होगा कि जो एक शख्स फरार है उसको किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे ट्रैक किया जाएगा. जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि ये लोग क्योंकि कर्नाटक के नहीं हैं, ये काम के सिलसिले में आया करते थे और लेबर क्लास के लोग हैं, काफी लोकल ये इनका काम हुआ करता था. कोई कारपेंटर है तो इस तरह के ही मुलाजिमीन उसमें शामिल है. तो इन लोगों को वक्तन फक्तन वो कर्नाटक आया जाया करते थे और जब काम उनका खत्म होता तो वो शराब पीने के लिए किसी सुनसान जगह जाया करते थे. तो उसी वक्त वो चामुंडी हिल्स में गए थे और उसी वक्त ये वाकया पेश आया. तो काफी जानकारी जो है पुलिस ने इकट्ठा कर ली है
और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है परवीन सूद जो डीजीपी है उन्होंने काफी साफ इसमें बताया, डिटेल्स की जानकारी दी और अपनी टीम को भी उन्होंने मुबारकबादी दी। कहीं ना कहीं एक जो मुअम्मा था इसका जो है हल होता हुआ नजर आया है कहीं ना कहीं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस इसको किस तरह से लिखती है, किस तरह से छानबीन करती है और किस तरह से कोर्ट के सामने सबूत जो पेश करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद इस तमाम जानकारी के लिए। तमिलनाडु बीजेपी लीडरान के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर रियासती कांग्रेस ने स्टालिन हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया। पार्टी की खातून विंग ने सीएम एमके स्टालिन ने बीजेपी लीडर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस दौरान पार्टी ने डीएमके से किसी तरह के टकराव से इनकार किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो हुकूमत की नाकामियों के सामने लाने का हक रखते हैं और ये हुकूमत बेहतर कर रही है, लेकिन कुछ सख्ती करने की जरूरत है ताकि रियासत में औरतों के खिलाफ बोलने वालों पर लगाम लगाई जा सके। याद रहे कि तमिलनाडु बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी टी राघवन ने मंगल को एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक खातून के साथ सेक्स वीडियो चैट में दिखाई दे रहे थे। हालांकि राघवन ने ट्वीट करते हुए वीडियो कॉल में खुद को शामिल होने से इनकार किया, जिसमें वो मुश्तबा हालत में दिख रहे हैं। Sexually harass the woman in the BJP, and we also want Mr. Annamalai, state BJP resign right now. He doesn't have any moral responsibility to continue in any political position. He said actually any other woman can be sexually exploited to any ordinary woman. We are talking for only people. We are raising the issue for Tamil Nadu people. We are raising the subject for the Tamil Nadu people welfare. Because the Kodanadu issue, former Chief Minister, today opposition party leader only raised the floor. He only told about the Kodanadu. Then he went and meet governor. Then he met the press in the public way. So he only started. That time he doesn't know about the sub judice. We are raising the question what we want, people what the people need. They want to know what is going on in Kodanadu. We given the 55. We have to discuss about this subject. They said the sub judice. So the Congress party given the discussion, they said sub judice. Why they raised the assembly the Thursday last week? This is a question. The people are watching. Then Kaveri issue. Any issue we are talking. Today also we raised about the Gajana. There is no money in the government. Where that money is gone? We are talking. They are telling how can they say the Gajana is closed. We are telling that given a white paper, we are talking about regarding the white paper. This is Congress party strongly raising the question behalf of Tamil Nadu people. इस मौके पर डीएमके से सियासी रिश्तों को लेकर क्या कहा कांग्रेस एमएलए ने, आइए आपको सुनवाते हैं। We are not only supporting DMK government is our coalition government, our partner government. We have to naturally support. But now the DMK Chief Minister MK Stalin ji is a role model of throughout the country, the Chief Minister. We are supporting. Not only that, if a subject is there, we are raising the issue, the floor. Everybody is telling about this. Bharatiya Janata Party is a Bharatiya Jalsa Party. They produce the video, they produce the audio recording. Not only Tamil Nadu, throughout the country going on. That High Command should control like this. Should not happen in future. वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस वक्त तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वो कई प्रोग्राम्स में शामिल हुए। वजीर दिफा ने कहा कि हिंदुस्तान की सरहदी हिफाजत इस कदर मजबूत कर दी गई है कि अब समंदर के रास्ते से 2008 के मुंबई हमले जैसी दहशतगर्दाना वाकया मुमकिन ही नहीं रहा। हमारे जवान ऐसे किसी भी मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह सनीचर को चेन्नई के तटरक्षक पोत विग्रह के कमिश्निंग तकरीब में भी शामिल हुए। इससे पहले चेन्नई पहुंचने पर उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया, जहां से वो बाद में राजभवन जाकर गवर्नर से भी मिले। That all these ships have been delivered ahead of schedule. I would like to congratulate L&T Patil ji on this important achievement. It shows that the stream of self-reliance which had started in the country 5-6 years ago has been continuously
moving forward and flourishing since then. I would like to acknowledge the significant contribution of L&T in shipbuilding for Coast Guard and Indian Navy. Despite COVID challenges, L&T had delivered every ship before schedule. This is commendable. Friends, with the inclusion of these state-of-the-art vessels, the capability of the Indian Coast Guard has increased tremendously. The journey of growth of our Indian Coast Guard, which began with a modest 5 to 7 small boats, has today grown to over 20,000 active personnel, over 150 vessels, and a fleet of over 65 aircrafts. कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर रियासत केरल लगातार वैक्सीनेशन मुहिम चला रही है। मरकजी हुकूमत की मदद से होने वाली इस मुहिम में रियासती हुकूमत अपने लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है। इसके लिए सरकार जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स भी चला रही है, जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचकर इस मुहिम को कामयाब करने में लगे हुए हैं। इस मामले में रियासत के वजीर सेहत ने केरल में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का दावा किया। वीना जॉर्ज के मुताबिक दीगर रियासतों से वो बहुत आगे है और वैक्सीनेशन मुहिम लगातार जारी है। When you look at the fatality rate of Kerala, it's 0.51%. And also the ICMR seroprevalence study shows that the seropositivity of the state is 42.7%, which means that more than 50% of the total population is still unaffected, which shows that the protective measures of the state, so far the state has taken, they are successful. And also the undercounting factor, the tests done. We can see that the tests per million in Kerala is the best in the country. So today we have done more than 1,70,000 tests on a single day, and also the undercounting factor in Kerala is 1/6. That means we report every single case in 6 cases, whereas the national average it's 1 in 33, and in some states it's like 1 in 100. So which means that our tracing, our testing is one of the best in the country. And so as a health department, what we are doing is that we are doing the tracing, we are doing the testing, and we are giving the treatment. And also at present, what we are also focusing on vaccinating our people. नाज़रीन, कर्नाटका में बढ़ रहे जराइम के मामलों को देखते हुए पुलिस अब अलर्ट हो गई है। इसी कड़ी में कलबुर्गी पुलिस ने तकरीबन 100 बदमाशों को थाने में बुलाकर परेड कराई। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने बदमाशों से जराइम से दूर रहने की सलाह दी। इस मौके पर पुलिस का कहना है कि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन को देखते हुए ये कार्रवाई की गई, जो वक्त वक्त पर अब होती रहेगी।